Hi, I am Nitin Kumar. I welcome all of you on the IQ Civils online platform. And from today onwards, we are going to discuss about the Hindus editorial and side by side the Indian Express. So every day I am going to take up two, three topics there, and certainly I am going to cover the Hindus editorial in the on the priority basis and uh, some topic from either from the Hindu or from the Indian Express. So let's see uh, what is the topic today. So it is about the mapping ties. देखो मैपिंग टाइज की यदि बात की जाए सो न्यू मैप हैज बीन इशूड बाय चाइनीज अथॉरिटी एंड दिस रैंगलिंग और ये जो झगड़ा है वो उसके ऊपर हो रहा है. सो दिस इज द एडिटोरियल एंड it is related to your gs paper second. Okay, and we have a part here, India and its neighbor. India and its neighbor. So let's see what is the editorial. By the way, China must show its neighborhood the sensitivity that it demands of them a week after the first conversation in many months between the Prime Minister Narendra Modi and the Chinese President Xi Jinping, and India and China appear nowhere coming to any kind of understanding and repair their relations. तो इसमें जो कहा जा रहा है कि भारत जैसे चाइना के सेंसिटिविटी का ध्यान रखता है, ठीक उसी ढंग से चाइना को भी भारत के सेंसिटिविटी को ध्यान रखना चाहिए. और अभी देखा कि इन ब्रिक्स सम्मेलन में, ठीक है, इन द ब्रिक्स समिट इन जोहान्सबर्ग, जो ब्रिक्स समिट हुई है पिछले हफ्ते, उसमें ऑन द साइडलाइन ऑफ दैट India's Prime Minister and the Chinese President Xi Jinping actually met, and they decided to give order to the respective officers to expedite the process of disengaging the wrangling going on इन एंड अराउंड द गालवान वैली. तो गालवान वैली के आसपास जो कुछ भी तनातनी चल रही है 2020 के बाद, दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री एक तरफ से भारत के और दूसरी तरफ से चाइना के राष्ट्रपति ने ये अपने अपने अधिकारियों को कहा कि भाई आप क्या करें, इस पूरे के पूरे डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस को, यानी कि जो सेनाएं जो बॉर्डर पे है उसको क्या किया जाए, वापस लिया जाए जितनी जल्दी हो सके. दैट इज द फर्स्ट थिंग. On the contrary, relations with the weak have faced yet another storm, with the two sides clashing over China's issue, a new map, and reports on Thursday suggesting that Mr. Xi Jinping may skip the G20 summit in the न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक. अब देखिए कि यहाँ पर तो मुलाकात होती है किसकी किसकी, तो सी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की. अगले ही हफ्ते, ओके, ऑन द कंट्री टू दैट, चाइना इशूड अ मैप, क्लियर. और फिर उसके बाद ऐसी रिपोर्ट ये भी आ रही है कि नेक्स्ट वीक जो G20 की मीटिंग होने जा रही है, समिट होने जा रही है न्यू दिल्ली के अंदर, उसमें शायद चाइनीज प्रीमियर ना आए. ओके, the Chinese foreign ministry did not confirm those reports, but it also not deny them. तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की यदि बात की जाए तो उन्होंने ना तो इस रिपोर्ट को कंफर्म किया ना डिनाई किया. Means the things are still in doldrums. Okay, whether the Xi Jinping is coming or not coming, it is not decided yet. No official word has been given by the Chinese official, particularly the Ministry of External Affairs of China. So event this week meanwhile survey reminder of currently low level of trust, with the relations arguably their lowest since the normalization of ties in the 1980s. क्लियर. अब देखो इस में क्या कही जा रही है बात, कि इस चीज को ये इस चीज से ये रिमाइंड होता है कि 1980s में जो हमारे संबंध नॉर्मलाइज हुए थे, इट इज एट द लोएस्ट एब. लोएस्ट एब कहने का मतलब सबसे निचले स्तर पे आ चुका है भारत और चीन के संबंध की बात की जाए. एंड सर्टेनली we our relation, that is the Sino India relation, is suffering from trust deficit. Clear.
एक दूसरे के ऊपर विश्वास की क्या है, कमी है। चलिए अब देखिए, on 28th of August, China issued what it called a standard map for the 2023, क्लियर। तो 2023 के लिए स्टैंडर्ड मैप किसके द्वारा इशू किया गया, तो चाइना के द्वारा इशू किया गया। अब देखिए इसमें व्हाट इज द कंट्रोवर्सी देयर, actually that map is showing that the state of Arunachal Pradesh, Aksai Chin region and the South China Sea as the Chinese territory। तो इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश है, और फिर दूसरी तरफ यदि आप देखें तो अक्षाई चीन, जिसके के ऊपर चीन 1960 ऑनवर्ड्स क्या करके बैठा हुआ है, कब्जा जमाए बैठा हुआ है, क्लियर। उन दोनों को ही चाइना ने मैप के अंदर अपना हिस्सा दिखलाया, अपना टेरिटरी दिखलाया। और इसके अलावा फिर आप जानते हैं कि साउथ चाइना सी की यदि बात की जाए तो अराउंड 80% ऑफ द साउथ चाइना सी, चाइना इज क्लेमिंग दैट इट इज हर टेरिटोरियल वाटर। और फिर इसके कारण से चाइना हैज ए इशू विद द फिलीपींस, ठीक है, उसके बाद जापान, ठीक है, फिर आप देखें कि ब्रुनई की बात कर ले, सारे छोटे छोटे जो मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सबों के साथ कुछ ना कुछ इनके अपने डिस्प्यूट हैं, वाटर डिस्प्यूट है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन। तो लेकिन जब इंडिया ने, वंस द इंडिया क्रिटिसाइज दैट पर्टिकुलर मूव एंड द पब्लिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मैप बाय द चाइना, तो होता क्या है कि चाइनीज ऑफिशियल्स ने कहा दैट इट इज ए रूटीन, और इंडिया को कहा कि शुडंट ओवर इंटरप्रिटेशन, मतलब वो बहुत ज्यादा इसको इंटरप्रेट ना करे, इट्स ए जनरल थिंग एंड द एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया शुड टेक इट डाउन, ठीक है, बहुत ज्यादा इसको तूल देने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर जोर डालने की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो अब देखिए इसमें फैक्ट्स क्या है। व्हाइल इट मे बी ट्रू दैट द मैप made no new territorial claims and depicted borders as in the previous Chinese map, जैसा कि पिछले चाइनीज मैप के अंदर ही इन सारे टेरिटरी को उनका दिखाता रहा गया है, किसका, चाइना का, ठीक इसी ढंग से इस बार भी दिखाया गया है स्टैंडर्ड मैप जो 2023 की पब्लिश की गई है। इट इज क्लियर दैट नीडलेस इशू ऑफ द न्यू मैप, ठीक है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई नीडलेस इशू है नए मैप के ऊपर। लेकिन एक चीज सोचने की जरूरत है, और जो कि इस एडिटोरियल में कहा जा रहा है कि टाइमिंग ऑफ द इशूइंग ऑफ दिस न्यू मैप is a crucial, clear, because there is a live territorial dispute is going on between India and China, okay, from 2020 अप्रैल onwards गालवान वैली के अंदर। तो इस चीज को ये क्या करेगा, ये जो नया जो मैप इशू किया गया, certainly it is going to multiply that, certainly it is going to multiply that now। So the responses of the China's neighbors make that clear, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भाई चाइना को इस बारे में बिल्कुल चीजें क्लियर करनी चाहिए। अब देखो थोड़ी सी बात कर ली जाए। while when in India in 2019 issued a new map following the internal reorganization of Jammu and Kashmir and creation of new union territory of Ladakh, Beijing response was a strong one, clear। और देखो इसमें यह कहा गया कि 2019 में, as you know, in 2019 on the 5th of August, actually Jammu Kashmir Article 370 was deoperationalized, and side by side full-fledged state of Jammu Kashmir has been divided into two union territories. First is the Jammu and Kashmir and the second is the Ladakh region, clear। उसके बाद after that India issued a official map, क्लियर। और ये पहले भी जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा हुआ करता था, भारत का, और अभी भी भारत का ही था, ठीक है, और है भी। लेकिन यहां पर जब नए मैप इशू किए गए और एक्सटर्नल बाउंड्री को उस मैप में कहीं भी छेड़छाड़ नहीं की, बट स्टिल बात इतनी बढ़ गई कि चाइना ने इस चीज को क्या किया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उठाया, यूएनएससी के अंदर उसको उठाया, क्लियर। अब देखिए, in the view of some observers, China's increasingly aggressive mobilization on the line of actual control, leading to the ongoing crisis, has plunged the relationship to this low level। अब कुछ observers का कहना है, यानी कि विदेशी मामलों के जो जानकार लोग हैं, उनका ये मानना है कि ये जो गालवान वैली में जो कुछ भी हुआ या एलएसी के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं
भारत और चाइना के रिलेशंस को बिल्कुल नीचे ले जा रहा है, बिल्कुल गोते मार चुका है, मतलब इट प्लंज्ड इन वेरी वेरी डाउनवर्ड। क्लियर? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था फ्रेज, इट इज एट द लोएस्ट एब, बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच चुका है। अब देखो, इन द रिसेंट अप एंड डाउन हिस्ट्री ऑफ इंडियाज टाइज विद चाइना, समिट मीटिंग हैव ऑफर्ड द प्लेटफॉर्म फॉर द two countries. Clear? And dial down the tension by giving the two leaders of the opportunity for the high level intervention and the case at the 2017 ब्रिक्स समिट फॉलोइंग द डोकलाम स्टैंड ऑफ। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ब्रिक्स समिट की यदि बात की जाए तो अभी भी जोहान्सबर्ग में क्या हुआ है, पहली बार जो एक आधिकारिक तौर से ऑफिशियल यदि देखें तो बातचीत हुई किसके किसके बीच में, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में। क्लियर? ठीक है, ऐसा ही 2017 में जब डोकलाम की क्राइसिस हुई थी, आप जानते हैं किसके किसके बीच में, तो कहीं ना कहीं एक तरफ से भूटान और इंडिया था और दूसरी तरफ चाइना था। ठीक है, और उस समय भी काफी दिनों तक तनातनी चलती रही थी, लेकिन समझे अब इस बात को कि उस समय में भी चीजों को टोन डाउन करने में ब्रिक्स की जो समिट हुई थी उसका हमें क्या मिला, हेल्प मिला। ठीक है, अब देखिए, रिगार्डलेस ऑफ वेदर मिस्टर शी जिनपिंग विजिट न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक, प्रोस्पेक्ट ऑफ द सिमिलर रिप्रोचमेंट रिमेन डिम। अब देखो इस शब्द को समझे, व्हाट इज द रिप्रोचमेंट। क्लियर? रिप्रोचमेंट का क्या मतलब होता है कि जब चीजें काफी तनातनी हो जाए, इफ देर इज ए वॉर और रैंगलिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है, इफ देर इज ए ब्रिकमैनशिप इज गोइंग ऑन, आपस में क्या चल रही है, बहुत ज्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो टेंशन चल रही है, उसके बाद जो कूलिंग पीरियड होती है दैट इज द रिप्रोचमेंट। तो कहा यह जा रहा है कि वेदर द शी जिनपिंग इज कमिंग और नॉट कमिंग फॉर द ब्रिक्स, फॉर द G20 summit in New Delhi in the next week, it is not going to make any difference as far as the cooling down of the tension between the India and China is concerned. Now, so repairing relations will require slowly building trust on a foundation of greater mutual sensitivity. तो ये कहा जा रहा है कि जो भाई रिश्ते जो बिगड़ चुके हैं हमारे और चाइना के, उसको रीबिल्ड करने के लिए भाई ज़्यादा एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता और सेंसिटिविटी दिखाने की ज़रूरत है। ओके, इंडीड चाइना वुड डू well to show its neighbor that the sensitivity that it demands of them if it has any inclination towards the repairing increasingly fraught relation. ठीक है, increasingly fraught relations means what? The things are going from bad to worse as far as India China relations is concerned, as far as after April 2020 is concerned. Clear? So better, it is better for the India and China to show sensitivity towards each other so that they can improve their relation. और ये चीज क्या दी गई है आज के एडिटोरियल में, दी गई है द हिंदू के। अब देखते हैं कि एक आर्टिकल जो मैंने लिया है वो किसका, तो इंडियन एक्सप्रेस का। So 176 global leaders urge Bangladesh to suspend cases against the Nobel Peace Prize. तो 176 जो वैश्विक स्तर के ग्लोबल लीडर्स हैं, उन्होंने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से ये कहा है कि नोबेल पीस प्राइज विनर यानी कि जो मोहम्मद यूनुस हैं, उनके खिलाफ जो कुछ भी कार्रवाई की जा रही, वट एवर लीगल एक्शन इज बीइंग टेकन ऑन, शुड बी टेकन बैक। क्लियर? एंड व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज द कंट्रोवर्सी, वी विल कम टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, बट बिफोर मूविंग फर्दर यू शुड नो वेयर इट actually connects with your preliminary examination, PT examination. There is one topic that is current events of the national and international importance. Okay, that is the first thing. Next one is the mains examination में certainly India and its neighborhood relation. Okay, so India बांग्लादेश relation से ये related हो सकता है। ठीक है, अब देखो की पॉइंट क्या है, समझे कि मैंने जैसे बताया कि more than 170 global leaders and the Nobel laureates have urged the Bangladesh Prime Minister to suspend the legal proceedings against the Muhammad Yunus who was awarded the Nobel Peace Prize in 2006. तो 2006 में मोहम्मद यूनुस को नोबेल पीस प्राइज दी गई थी क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा काम या अनोखा सा काम, पायनियरिंग वर्क किया था, जो कि अपने आप में पहला कहा जा सकता है, माइक्रो क्रेडिट टू द हेल्प impoverished people, यानी कि बिल्कुल जो गरीब लोग हैं उनको माइक्रो क्रेडिट दी जाए। Now the question arises, what is the difference between the micro credit and the micro finance? Clear? माइक्रो क्रेडिट की यदि बात की जाए तो जो whoever is the marginalized section of the society, if they are getting the loan without the collateral
इनपुट देयर, यानी कि बिना कुछ गिरवी या प्लेज रखे हुए यदि कोई लोन दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं, माइक्रो क्रेडिट कहते हैं। जबकि और ये क्या होगा, एक तरीके से स्टार्टअप होगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि इफ यू टॉक अबाउट द माइक्रो फाइनेंस, सो the enterprises is already existing, but if the bank is providing different sort of the financial services to that existing enterprise, that is known as the माइक्रो फाइनेंस। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये फर्क है माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के अंदर। तो यहाँ पर माइक्रो क्रेडिट दी गई किसके द्वारा, ये मोहम्मद यूनुस की जो है। तो अब देखो ग्रामीण बैंक उसके द्वारा एक ओपन लेटर लिखा गया जिसमें कि उस पर सिग्नेचर करने वाले एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए बराक ओबामा भी थे, ठीक है, और एक्स सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशंस, वो कौन थे, बान की मून। एंड इसके अलावा 100 नोबेल लॉरेट्स, मतलब 100 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने भी इसके ऊपर क्या किया था, अपना साइन किया था टू सपोर्ट द मोहम्मद यूनुस, ओके, एंड अर्ज द बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना टू टेक बैक ऑल द केसेस अगेंस्ट मोहम्मद यूनुस। क्लियर? अब देखिए, अब इन्होंने बोला कि दे आर डीपली कंसर्न्ड विद द थ्रेट टू द डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन द बांग्लादेश। और इन्होंने कहा कि भाई इससे क्या हो रहा है कि बांग्लादेश में ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, और साथ में साथ यदि आप देखें तो इसके साथ ही जो बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को भी थ्रेट है। इस चीज के लिए इनको क्या करना चाहिए, वापस लेना चाहिए। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस कंट्रोवर्सी, व्हाट इज द ग्रामीण बैंक इज ऑल अबाउट। ओके, सो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ग्रामीण बैंक का जो प्रिंसिपल है ट्रस्ट एंड सॉलिडरिटी, यानी कि एक दूसरे पे विश्वास करें और एक दूसरे को साथ लेके चलें। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट प्रोवाइड्स द माइक्रो क्रेडिट विदाउट कोलेट्रल टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब गरीबों में भी जो अत्यंत गरीब हैं उसको दिया जाता है क्या, माइक्रो क्रेडिट। और इसके वेबसाइट के हिसाब से, यानी ग्रामीण बैंक के वेबसाइट के हिसाब से देखें तो 80,000 विलेजेस में इसके ब्रांच है। इट हैज ए ब्रांच in and around 80,000 villages, and it has a 2500 ब्रांचेस। और काफ़ी रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी रही है इसकी। और जो भी ज़रूरत की क्रेडिट चाहिए पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ये प्रोवाइड करते हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है। क्लियर? मतलब लोग माइक्रो क्रेडिट तो ले रहे हैं, साथ में लौटा भी रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है यहाँ पर कम है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? क्लियर? इफ लेट्स सपोज इफ आई हैव टेकन द लोन or micro credit from some bank, and if I am a defaulter for successive 3 months, then the bank will count it as a NPA। ठीक है? यदि मैं 3 महीने तक लगातार ही समय से पैसे ना चुकाऊं, इंस्टॉलमेंट ना दूं, ठीक है, बैंक को जिससे मैंने लोन लिए हैं, तो उस रकम को क्या करती है, उस अमाउंट को क्या कर दिया जाता है, बैंक के द्वारा एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। नाउ अब देखिए, तो इस तरीके से यदि देखें तो काफ़ी ज़्यादा इनका अच्छा सा परफॉर्मेंस रहा है। और जो नाइजीरियन नोबेल कमेटी ने जब दिया इनको पुरस्कार, तो उसमें जो लिखा गया, to create the economic and social development from the below. Now you have to understand, it is a bottom to top approach। Clear? बॉटम टू टॉप अप्रोच rather than the top to bottom approach। ठीक है? जैसे आज की तुलना में यदि कर ली जाए किससे, प्लानिंग कमीशन से। इंडिया में यदि देखो तो प्लानिंग कमीशन का क्या था, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती थी, सेंट्रलाइज एलोकेशन ऑफ फंड होता था, और सेंटर उसी के हिसाब से स्टेट्स को फंड्स दिया करती थी, एलोकेट किया करती थी। ध्यान देना इस चीज को। तो पहले क्या होता था, टॉप टू बॉटम। अब क्या हो रहा है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जब से नीति आयोग आई है। क्लियर? यानी कि इनपुट कहां से ली जाती है, बिल्कुल ग्रामीण स्तर से, फ्रॉम द विलेज लेवल, और फिर अकॉर्डिंगली things are provided to the different regions। Clear? So what the Niti Aayog is going for, it's a tailor made solution to the problem of that particular area। इस चीज को समझे। अब देखो नेक्स्ट जो बारी आती है, इसके बाद कहा गया कि साइटेशन में क्या गया, जो प्रशस्ति पत्र दी गई उसमें क्या कहा गया, लास्टिंग पीस कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस लार्ज पॉपुलेशन ग्रुप फाइंड्स वेज इन विच द ब्रेकआउट ऑफ द पॉवर्टी। क्लियर? तो कहा जा रहा है कि जब तक गरीबी से ऊपर ना निकले, ठीक है,
तब तक लंबे समय तक शांति व्यवस्था बहाल नहीं रह सकती, कायम नहीं रह सकती, कहां पर, सोसाइटी के अंदर। सो माइक्रो क्रेडिट इज वन सच मीन्स, और बोला कि वन ऑफ द वे टू पुल आउट और एलिविएट द पॉवर्टी इन द some of the sections of the society is through the micro credit देके ऐसा किया जा सकता है। Development from the below also serves to advance the democracy and the human rights. So if the development will start from the below, that is from the bottom to top, then certainly it is going to help, then it is certainly going to help the democracy, and besides that it is going to maintain the human rights. Clear? अब देखिए, तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस रख दिए हैं जिसका जवाब मैं दे रहा हूँ। तो जब भी आप मेंस, whenever you will go for the men's answer writing, and if you answer all these 5-8 question which is being given here, certainly you will able to write the men's answer also. Okay, so फॉर योर, अब इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखिए 1983 में यूनुस ने ग्रामीण बैंक की फाउंडेशन की और छोटे छोटे लोन्स देने शुरू किए एंटरप्रेन्योर्स को एंड पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को। क्लियर? जिस जो कि कोलेट्रल ना होने के कारण से, यदि वो कोई प्लेस नहीं रख पाता है, चाहे वो ज़मीन हो या कोई कागजात हो या आप ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, ये सब नहीं रख पाता है, तो इसके कारण से उनको, या उनके पास रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स ना हो, तो फिर क्या होता है कि उनको लोन नहीं दी जाती है बैंकों के द्वारा। तो ऐसे को केटर कौन करता है? ग्रामीण बैंक। अब देखो, द बैंक सक्सेस इन लिफ्टिंग पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी लेड टू द सिमिलर माइक्रो फाइनेंसिंग एफर्ट इन मेनी अदर कंट्रीज, और इसके कारण से बहुत सारे माइक्रो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दूसरे दूसरे देशों में भी क्या होते हैं? शुरू होते हैं। ठीक है, अब देखना, इस चीज को समझना। अब यूनुस की यदि बात की जाए और ग्रामीण बैंक की, तो इनको बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस को झेलना पड़ा है, इनके ऊपर बहुत सारे एक्विजिशन या आरोप लगाए गए हैं, और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की यदि बात की जाए, कब से, जब से वो 2009 से पावर में आई है, उसके बाद से इनकी परेशानी मोहम्मद यूनुस की क्या हो गई? शुरू गई। क्लियर? और द एक्चुअली द प्रॉब्लम बिगिंस इन द 2007 इटसेल्फ, एंड कब हुआ? जब यूनुस फोरेड इनटू द पॉलिटिक्स ब्रीफली, वो थोड़े समय के लिए क्या करते हैं? पॉलिटिक्स में जाते हैं। ठीक है, एंटर इनटू द पॉलिटिक्स, एंड ही एक्चुअली रोट ए ओपन लेटर इन वन ऑफ द लीडिंग डेली ऑफ द बांग्लादेश, दैट इज द डेली स्टार। डेली स्टार के ऊपर में एक जो वहाँ की न्यूज़पेपर है, उसमें एक ओपन लेटर लिखते हैं, लोगों को लिखते हैं, और he actually cited the people's view on floating a political party, and he said that I want to float a political party, and so what is the opinion of yours? तो ये लोगों से पूछा इन्होंने। ठीक है, और इनकी कहानी और परेशानी यहीं से शुरू होती है। क्लियर? Beside that, he observed in that daily that he observed that the current political climate seeks to destroy the potential of the country। मतलब अभी की जो स्थिति है उस देश में, बांग्लादेश में 2009 में इन्होंने कहा कि भाई ये क्या करेगा? पूरे देश को खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। सो विदाउट ए कॉम्प्रिहेंसिव चेंज देयर, इट वुड नेवर बी पॉसिबल टू टेक द नेशन टू द हाइस्ट डिजर्व, and the Daily Star reported। Clear? और साथ में कहा कि until unless we go for the overhaul of the system, until unless we will go for the comprehensive change in the political system, administrative system, economic system, okay, बांग्लादेश would not be able to get the height which it deserve। मतलब बांग्लादेश जिस हाइट को डिजर्व करता है, या उसकी जो पोटेंशियलिटीज है, उसके हिसाब से उसके पास चीजें नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे उन्होंने कहा, ही ऑब्जर्व फर्दर दैट इट वाज अ टाइम फॉर द कंट्री टू गेट रीड ऑफ द पास्ट फ्रस्ट्रेशन एंड गिव राइज टू द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन द कंट्री दैट बांग्लादेश इज ड्रीम्ड ऑफ। क्लियर? तो कहा कि भाई यदि जब तक पुराने जो आपके, ठीक है, हिस्टोरिकल लीगेसी कहते हैं इसको, जब तक अपने हिस्टोरिकल लीगेसी या बैगेज को आप नहीं छोड़ते, तब तक आप यू कांट अटेंड द हाइट्स देयर। ठीक है, और बांग्लादेश एक ऊंचाई पे नहीं आ पाएगा। लेकिन एक क्या होता है, डेनिस डॉक्यूमेंट्री आती है 2010 में, और उसमें मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक के ऊपर ये आरोप लगाया गया। ठीक है, दैट वाज द एक्विजिशन दैट दे हैव एक्चुअली diverted funds of about 100 millions which is given by the Nigerian Agency for Development and Cooperation, NORAD के द्वारा जो दिया गया। ठीक है, उसके करीब 100 मिलियन फंड्स को, ठीक है,
जो इंटेंडेड चीजों के लिए था, जिस चीज के लिए था उस चीज में यूज नहीं किया, एंड इट हैज बीन डाइवर्टेड, मींस इट इज मोर लाइक ए साइफनिंग ऑफ, मतलब वहां पर कुछ ना कुछ गबन की गई, ठीक है, हेराफेरी की गई। ओके नाउ, तो लेकिन ये बाद में दिस एलिगेशन वाज डिसअप्रूव्ड, इसको प्रूव नहीं किया जा सका। बट इन जनवरी 2011 the Grameen Bank came under a scrutiny when the government ordered a probe of allegation that donation to the bank were not being used for the intended purpose। फिर 2011 में भी शेख हसीना की जब गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि देखो ऐसा है कि आपको जो डोनेशन मिल रही है बैंक को, आप जिस चीज के लिए डोनेशन मिल रही है यू आर नॉट यूजिंग फॉर दैट पर्पस। और अब देखो ये कहीं ना कहीं ग्रामीण बैंक के जो हेड थे, ठीक है, मोहम्मद यूनिस, उनके ऊपर एक तरीके से पॉलिटिकल एक्यूजिशन की जा रही है कहीं ना कहीं। तो उनको डिफेंड करने के लिए क्या हुआ कि फ्रेंड्स ऑफ द ग्रामीण बैंक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, सो दैट दे कैन मैनेज द पॉलिटिकली ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक, यानी कि राजनीति से प्रेरित जो उनके ऊपर हमला किया जा रहा था उससे बचाव करने के लिए फ्रेंड्स ऑफ ग्रामीण बैंक बनाई गई। ओके नाउ, so in March 2011 another issue came, clear, और इसमें ये था कि भाई अकॉर्डिंग टू द बांग्लादेशी रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको ये समझने की जरूरत है कि once somebody attain the 60 years, clear, 60 years he must retired, clear। but 2011 में ये मिस्टर यूनिस जो थे वो क्या थे, मिस्टर यूनिस जो थे वो क्या थे, तो 70 साल के हो चुके थे, और फिर उनको क्या किया गया, बोला गया कि इट इज बेटर, इट्स हाई टाइम फॉर यू टू रिटायर। ओके, एंड एक्चुअली ही चैलेंज दैट particular decision, even the Supreme Court of the Bangladesh, but Bangladesh Supreme Court has turned down that particular petition filed by the यूनुस, मोहम्मद यूनुस। तो ये पूरी कहानी थी, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्लियर, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स देयर। सो दैट्स एनालिसिस फॉर टुडे, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी शॉर्ट एंड क्रिप्स, क्लियर। मैक्सिमम 3 टॉपिक्स मैं कवर करूँगा, आई एम गोइंग टू कवर not more than 3 topics, but it is going to be the comprehensive analysis, and it is in the layman's parlance so that everyone can understand। okay, बिल्कुल आराम से और जो एक आसान सी भाषा में है मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो या क्लास अच्छी लगी हो तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू यू मस्ट मेक ए कमेंट, ओके, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन देयर। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बट बिफोर दैट, बिफोर लिविंग, ओके, द पीडीएफ just a minute, PDF document can be downloaded from the description section of the video, clear। और ये इंक्वायरी के नंबर है, ये आप चाहें तो और भी जानकारी ले सकते हैं IQ सिविल्स के हेडक्वार्टर्स से। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, इट्स हाई टाइम टू साइन ऑफ, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।